اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ آج صبح نماز فجر ہم نے مسجد اسحاق سٹی ہاؤسنگ گجرانوالہ میں ادا کی ہے، اور اب ہم سرائے چولستان جا رہے ہیں۔ یہاں سے ہم نماز کے بعد اپنا سفر جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں۔ ہماری آخری منزل جو ہے وہ سرائے چولستان ہے، اور آج شب بصری ہم انشاءاللہ وہاں ہی کریں گے۔ پہلی ہماری منزل یہاں سے لاہور ہے۔ اب ہم لاہور کے لیے روانہ ہونے والے ہیں۔ وہاں DHA لاہور میں ہم انشاءاللہ ناشتہ کریں گے، اور آپ کو بھی لاہور تک، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر ہم نے بہاولپور رکنا ہے 2-3 گھنٹے۔ لنچ ہمارا وہیں ہوگا، اور اس کے بعد ہم نے عصر کے ٹائم ہم نے چولستان کی طرف روانہ ہو جانا ہے۔ تو اب ہم لاہور کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، اور اس وقت میں مین بولیوارڈ جو ہے سٹی ہاؤسنگ گجرانوالہ کا وہاں پہ کھڑا ہوں، اور اپنے سفر کا آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ GT روڈ گجرانوالہ پہ سفر کر رہے ہیں، اور اب ہم انشاءاللہ تعالی چند ہی منٹوں میں ایکسپریس وے پہ چڑھنے والے ہیں۔ پھر ایکسپریس وے سے ہم وانڈو انٹرچینج ہوتے ہوئے سیالکوٹ موٹر وے پہ سفر کرتے ہوئے انشاءاللہ DHA لاہور پہنچیں گے۔ یہ ہم ایکسپریس وے پہ آ گئے ہیں۔ یہ سامنے ہمیں یہ ایکسپریس وے آپ کو بھی نظر آ رہا ہوگا۔ تو اب ہم ایکسپریس وے پہ چڑھ گئے ہیں یہاں پہ، اور ہماری منزل جو ہے وہ وانڈو انٹرچینج سے ہوتے ہوئے، جیسے میں نے پہلے بتایا ہے، لاہور کی طرف ہے۔ تو یاد رہے کہ ہم آج یہ چولستان کا، سرائے چولستان کا سفر کر رہے ہیں، کہ وہاں پہ ہم زمینوں کی آبادکاری دیکھیں گے، کیونکہ سرائے چولستان کو حکومت کی پریارٹی ہے کہ اس کو آباد کیا جائے۔ تو اس کی آبادکاری کے لیے مختلف بڑی کمپنیوں کو زمین لیز پہ دی گئی ہے۔ تو آج ہم پنٹیرا فارم کمپنی کی دعوت پر چولستان جا رہے ہیں، اور وہاں پہ دیکھیں گے کہ زمینوں کو کس طرح جدید طریقے سے آباد کیا جا رہا ہے، اور وہاں پہ ساری ہم سیر بھی کریں گے، اور آپ کو بھی انشاءاللہ دکھائیں گے۔ تو ہمارا سفر وانڈو انٹرچینج سے ہوتے ہوئے سیالکوٹ آگے لاہور کی طرف جاری ہے۔ ایک گجرانوالہ ٹال پلازا تک آ گئے ہیں۔ صبح صبح کا ٹائم ہے، اور ہر طرف یہ دھند کا راج ہے۔ یہ ہلکی دھند ہے یہاں پہ، اور پتہ نہیں اب یہ سموگ ہے یا دھند ہے، لیکن ہر طرف جو ہے نا یہ سموگ یا دھند جو ہے نا پھیلی ہوئی ہے۔ تو ہم ایکسپریس وے پہ سفر جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ایکسپریس کے دونوں اطراف زرعی علاقہ ہے، دیہاتی علاقہ ہے، اور یہ منجی یعنی چاول کی فصل کی کٹائی اب زوروں پہ ہے، کافی ساری ہو چکی ہے، اور باقی جو ہے ہو رہی ہے۔ جیسے ہی ہم رورل ایریا میں داخل ہوئے ہیں تو دھند نے زیادہ بڑھ گئی ہے، کیونکہ شہروں میں دھند یا سموگ کم ہوتی ہے، یہ رورل ایریا میں زیادہ ہے۔ تو الحمدللہ ہم دیوان روڈ کو کراس کرنے والے ہیں۔ یہ مشہور و معروف روڈ ہے جو کاموں کی سے سیالکوٹ جاتا تھا۔ لاہور سیالکوٹ موٹر وے بننے سے پہلے جو سیالکوٹ والے تھے وہ یہی دیوان روڈ استعمال کرتے تھے۔ اچھی بنائی گئی تھی اس وقت کارپیٹنگ، آج کل تو اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ اب دوبارہ سے مجھے MPA کیسر اقبال سندھو نے بتایا ہے کہ اب دوبارہ سے اس کو
रीवैम्प करने जा रही है हुकूमत पंजाब। एक्सप्रेस वे पे हमने 100 की स्पीड से जो है ना वो सफ़र किया है और हम पूरे 10 मिनट में वांडो इंटरचेंज कह ले या गुजरांवाला इंटरचेंज कह ले, हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। ये देखें सामने हमारी दाईं तरफ जो है वो टोल प्लाज़ा है और हम अब चंद ही मिनटों में लाहौर सियालकोट मोटरवे पे चढ़ जाएंगे। तो ये अब हम वांडो इंटरचेंज आ चुके हैं। जैसे मैंने पहले बताया है कि एक्सप्रेस वे पे हमें ना 10 मिनट लगे हैं यहाँ पे आते हुए, गुजरांवाला इंटरचेंज या वांडो इंटरचेंज। इलाकाई तौर पर तो इसे वांडो इंटरचेंज ही कहा जाता है और बाज़ इसको फिर गुजरांवाला इंटरचेंज का नाम देते हैं। ये देखें इंटरचेंज, ये गोल चक्कर है इंटरचेंज गुजरने के बाद, ये एक्सप्रेस वे के एंड पे, सॉरी। तो ये देखें इन्होंने काफ़ी इसको मॉन्यूमेंट बना के ना तो काफ़ी इसको खूबसूरत कर दिया है। हाँ जी, ये देखें ज़रा। हाँ, ये ख़वातीन भी सैर करने के लिए बाहर निकली हुई हैं सुबह सुबह। हाँ जी, तो अब जो है ना वो जो नारा होता था ना कि जी ये सड़कें अच्छी हों तो सफ़र कम हो जाता है, वो बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। हाँ जी, हमारे सामने टोल प्लाज़ा है। अब हम लाहौर सियालकोट मोटरवे पे चढ़ने के लिए जा रहे हैं। बस ये देखें, ये प्लाज़ा क्रॉस करेंगे, ये बैरियर ये खुद ब खुद ही उठ जाएगा और हम इंशाअल्लाह ताला फिर ये देखें ये बैरियर उठ गया है और हम बिल्कुल अब मोटरवे पे चढ़ने वाले हैं। तो ये देखें, हाँ जी, ये धुंध उसी तरह बदस्तूर है जी। हाँ जी, और सूरज भी अब निकलने वाला है, तैयारी कर रहा है सूरज अब निकलने की। मेरा ख्याल है निकल चुका होगा, शायद धुंध के पीछे छुपा हुआ है। हाँ जी, तो ये देखें जी, ये हम अल्हम्दुलिल्लाह ये हम मोटरवे पे चढ़ गए हैं जी। हाँ, ये देखें जी, ये हाँ जी, ये बिल्कुल हम अब सियालकोट लाहौर मोटरवे पे चढ़ गए हैं और हमारा ये सफ़र DHA लाहौर की तरफ जारी है। जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया था कि आज हमारी मंजिल जो है वो सहराए चोलिस्तान पे है। हम पेंटेरा फार्म कंपनी की दावत पे वहाँ पे जा रहे हैं। उन्होंने वहाँ रेस्ट हाउस भी बनाया हुआ है जहाँ पे हमारे क़यामो तमाम का उन्होंने बंदोबस्त किया हुआ है। जैसा कि आपको पता है कि पंजाब में लाखों एकड़ रकबा पे हाउसिंग कॉलोनियाँ कायम हो गई हैं, जहाँ पहले सब्जियाँ, गंदम, चावल और मुख्तलिफ़ किस्म की अजनास पैदा होती थी। अब वहाँ पे कॉलोनियाँ बन गई हैं और ये हज़ारों में नहीं लाखों एकड़ पे ये कॉलोनियाँ बन गई हैं। और नहरी पानी जो है अब चूँकि ये ज़री रकबा नहीं रहा, रिहायशी हो गया है, तो नहरी पानी उनको बंद कर दिया गया है। तो अब हुकूमत जो है सहराए चोलिस्तान को आबाद करने जा रही है और ये जो पानी यहाँ पंजाब में बच गया है ये रिहायशी कॉलोनियाँ बनने से, उसको यूज़ करने के लिए हेड इस्लाम से एक नहर जो है वो बनाई जा रही है जो सहराए चोलिस्तान को पानी मुहैया करेगी और सहराए चोलिस्तान जो है वो आबाद हो जाएगा और जो ज़री रकबा पंजाब में कम हो गया है वो इंशाअल्लाह ताला अनकरीब अगले 5-10 साल में पूरा होने जा रहा है। तो ये हुकूमत का एक अच्छा इनिशिएटिव है कि जहाँ ज़री रकबा कम हो रहा है तो नए रकबे जो है ना उनको आबाद किया जाए। तो इसी पॉलिसी के तहत हुकूमत ने बड़ी बड़ी कारपेट कंपनियों को ना वो रकबा लीज पे दिया है जहाँ पे वो
रकबा अब आबाद होने जा रहा है। तो हम भी उस रकबा की आबादकारी और सहराए चोलिस्तान की खाक छानने के लिए आज हमने अपना सफ़र गुजरांवाला से शुरू किया है। जिस तरह मैंने पहले बताया है, नाश्ता हम लाहौर DHA में करेंगे और उसके बाद हम इंशाअल्लाह बहावलपुर और चोलिस्तान की तरफ रवाना हो जाएंगे। और बहावलपुर में हम 2-3 घंटे क़ियाम करेंगे और शब बसरी, जैसे कि पहले भी मैं बता चुका हूँ, हम सहराए चोलिस्तान में करेंगे। सियालकोट मोटरवे के दाएं और बाएं सारा ज़री रकबा है और इस रकबे पे जो है वो चावल की फसल जो है लगाई गई थी, अब जो है उसकी कटाई हो रही है। ये देखें, ये अब धुंध की वजह से आपको साफ नज़र नहीं आएगा, लेकिन ये कुछ चावल की फसल काटी जा चुकी है। ये जो 86 सी ना फसल, यानी 86 ये चावल का फसल का नाम है, वो तकरीबन काटी जा चुकी है। और अब जो सुपर चावल है ना, उसकी फसल भी पकने के लिए तैयार खड़ी है। वो भी इंशाअल्लाह ताला 10-15 दिन बाद उसकी भी कटाई जो है वो शुरू हो जाएगी। बल्कि अगेती जो है उनकी कटाइयाँ तो शुरू हो चुकी हैं। तो ये गुजरांवाला से लाहौर तक वाया मोटरवे जो है ना, दोनों अतराफ जो है रूरल एरिया है और ज़री रकबा है, और जो कि जहाँ पे चावल और गंदम की फसल होती है। अब चूँकि चावल की फसल है तो इसलिए हम उसी का जिक्र कर रहे हैं। और चावल की फसल के बाद काश्तकार जो है ना, वो इंशाल्लाह गंदम की काश्त करेंगे इंशाल्लाह इन्हीं अपने ज़मीनों पे जी। मुरीद के नारोवाल इंटरचेंज के करीब हम पहुंच चुके हैं। ये बस चंद ही मिनटों में ये मुरीद के नारोवाल इंटरचेंज जो है वो आने वाला है। ये देखें बोर्ड, जो जिन लोगों ने मुरीद के जाना है वो बाएं तरफ जो है ना स्लिप रोड पे नीचे उतर जाएंगे। जिन्होंने मुरीद के जाना है या नारोवाल जाना है ना, तो वो बाएं तरफ जो है ना वो इस इंटरचेंज से नीचे उतर जाएंगे। ये देखें, ये है वो रोड, स्लिप रोड है, और यहाँ से नारोवाल और मुरीद के जाने वाले जो हैं वो उतर जाते हैं। और जिन्होंने लाहौर जाना है वो अपना सफ़र सीधा जारी रखेंगे। हमने चूँकि लाहौर की तरफ जाना है तो हम अपना इंशाल्लाह सफ़र जो है ना वो लाहौर के लिए जारी रखे हुए हैं। ये देखें, ये अब मोटरवे के ऊपर से मुरीद के नारोवाल रोड गुजर रहा है। ये ब्रिज है, इसके ऊपर से जो है नारोवाल, बद्दोमल्ली, नारंग, बड़े बड़े टाउन जो हैं इधर आते हैं, मशहूर टाउन है। और चावल जो है, जो बेहतरीन चावल है इसी इलाके का है। ये बद्दोमल्ली, नारंग, ये जो इलाके हैं ना, यहाँ का चावल जो है वो दुनिया का ना बेहतरीन जो है चावल वो शुमार होता है। ये जिन लोगों ने शाहदरा की तरफ जाना है, GT रोड की तरफ जाना है, काला शाह काकू की तरफ जाना है, तो वो ये बाएं मुड़ जाते हैं। हाँ जी, ये देखें, ये बाएं मुड़ जाते हैं। और जिन्होंने लाहौर की तरफ जाना है वो सीधा ही सफ़र करते हैं। ये देखें, ये सूरज भी जो है ना, अब इसने भी, ये देखो सूरज सुबह सुबह निकल रहा है और बड़ा अच्छा लग रहा है। यानी सुबह सुबह ये सूरज के नज़ारे ही कुछ और हैं। बिल्कुल ये धुंध है या स्मोक है, जो कुछ भी है, उसके दरमियान से ये हमें चमकता हुआ नज़र आ रहा है। तुलूए आफ्ताब और ग़ुरूबे आफ्ताब का जो मंजर होता है ना, वो बड़ा दिलकश अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है। अब हम ये देखें, ये है वो रोड जिसके ऊपर से गुजर के ना वहाँ जो बाएं तरफ उतर गए थे मोटरवे से, वो इस ब्रिज को क्रॉस करते हुए GT रोड गुजरांवाला GT रोड की तरफ जाएंगे। जिन्होंने काला शाह काकू जाना है, GT रोड जाना है, वो इस ब्रिज के ऊपर से
गुजरे गए। तो अब हम जो हैं हम इंशाल्लाह बढ़ रहे हैं दरियाए रावी की तरफ। ये भी ब्रिज है, ये बड़ा इंटरचेंज है, ये जो है ना बनाया गया काला शाह काकू इंटरचेंज। यहाँ से काला शाह काकू की तरफ जाते हैं, फिर लाहौर की तरफ जाते हैं, फिर सियालकोट की तरफ जाते हैं। तो बड़ा इंटरचेंज जो है ना ये बनाया गया है। जो लोग काला शाह काकू की तरफ जाते हैं वो आगे फिर जाके पिंडी मोटरवे को जो है ना रावलपिंडी मोटरवे की तरफ भी शाहपुरा रावलपिंडी यानी उधर भी जा सकते हैं। तो ये बड़ा आराम हो गया, ये बड़ा है। हाँ, अर्ज कर रहा था कि हम अब दरियाए रावी की तरफ बढ़ रहे हैं। दरिया जब ये 1962 में सिंध ताश मुआहदा हुआ था ना, तो ये दरियाए रावी जो है ना वो इंडिया के हिस्से आ गया था। अब इंडिया ने पहले तो रावी में पानी आता था, लेकिन अब इंडिया ने बड़े डैम बना लिए हैं और पानी को कंट्रोल कर लिया है। तो अब सिर्फ वो जब कभी फ्लड आते हैं तो दरियाए रावी में पानी छोड़ते हैं, वरना अक्सर जो है दरियाए रावी जो है दरिया हो के ये प्यासा हो गया है। यारो ये भी होता है, देखो इंसान जो है वो क्या कुछ कर सकता है, यानी पानी को किस तरह उसने कंट्रोल किया है कि रावी दरिया हो के प्यासा हो गया है। तो अब सावन भादों की बारिशों में रावी में पानी देखने को मिलता है। या लाहौर से डाउन स्ट्रीम की तरफ जाएं तो लाहौर का सारा गंदा पानी जो है वो दरियाए रावी में फेंक दिया जाता है। पुराने ज़मानों में ना रावी को पार करने का मतलब था कि बहुत दूर हम भेज रहे हैं अपने बच्चों को या अजीज़ों को या रिश्तेदारों को। तो उस वक़्त बुजुर्गों ने कहावत बनाई थी, जा पुत्र रावी तो ना कोई आवी तो ना कोई जावी। पंजाबी की ये रवायत है, यानी जो रावी क्रॉस कर गया ना वो बहुत दूर चला गया, क्योंकि उस ज़माने में फासले जो हैं वो पैदल ही तय होते थे, तो थोड़े फासले भी ज़्यादा लगते थे। तो अब हम यानी प्यासे दरियाए रावी की तरफ जा रहे हैं और इंशाल्लाह हम उस पे ब्रिज पे पहुंचेंगे इंशाल्लाह ताला। दरियाए रावी के ब्रिज के ऊपर से हम गुजर रहे हैं। ये देखें ये ब्रिज है और साथ ये देखें सूरज भी नज़र आ रहा है। और दरिया के हम ब्रिज के ऊपर से गुजर रहे हैं और पानी जो है ना बहुत नाम का पानी है, पानी नहीं नाम का पानी है। चलो थोड़ी बहुत इसकी प्यास बुझ जाती है रावी की, वरना पानी कोई नहीं है इस सीज़न में। अब पानी नहीं है इसमें, थोड़ा बहुत पानी जो है ना वो अभी आ रहा है। तो ये देखें, याद रहे कि लाहौर सियालकोट मोटरवे 4 लेन है, यानी 2 लेन आने वाली और 2 जाने वाली। लेकिन ये जो काला शाह काकू से लेकर महमूद बूटी तक बाईपास बनाया गया है, ये हुकूमत पंजाब ने बनाया है और ये देखे 3 लेन है। अब मैं चूँकि लाहौर सियालकोट मोटरवे से उतर कर ये दूसरी या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की मोटरवे पे चढ़ के आऊँ तो ये देखिए ये 3 लेन मोटरवे है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने अच्छा काम किया है कि इसको 3 लेन बनाया है, यानी काला शाह काकू से लेके रिंग रोड महमूद बूटी तक ये 3 लेन रोड है, खुला रोड है, मज़े का रोड है जी। और सूरज भी हमें बदस्तूर चमकता दमकता नज़र आ रहा है। ये हमारे दाएं तरफ जो है ना जंगल है, हम काला शाह काकू रिंग रोड महमूद बूटी पे रवा दवा है। हमारे दाएं तरफ जो है ना हुकूमत ने ना जंगल लगाया हुआ है, सफ़ेदे के पौधे हैं और काफ़ी बड़ी तादाद में जो है ना वो ये धुंध की वजह से ना आपको नज़र नहीं आएंगे, मुझे जो है ना माड़े मोटे नज़र आ रहे हैं ये जी। तो ये हुकूमत ने ना यहाँ पे जंगल लगाया है ताकि लाहौर के वासियों के लिए ऑक्सीजन का भी तो बंदोबस्त करना है ना। दरख्त होंगे तो ऑक्सीजन होगी, ऑक्सीजन होगी तो ह्यूमन लाइफ होगी ना। तो ये अच्छा काम है कि जंगल लगा दिया है ताकि वाफर मिकदार में जो है ना आ जाए। अब ये देखें, अब ये दूसरा टोल प्लाजा आ गया है जो काला शाह काकू रिंग रोड को फीड करता है।
اب اس پہ ہم انشاءاللہ رکیں گے, ٹول ادا کریں گے, اور اس کے بعد ہم رنگ روڈ پہ چڑھ کے لاہور ایئرپورٹ کے قریب سے گزر کے اب ہم انشاءاللہ تعالی جو ہے نا وہ آگے جائیں گے DHA لاہور, جہاں پہ ناشتہ ہمارا انتظار کر رہا ہے. تو وہاں پہ ہم ناشتہ کر کے پھر ہم بہاولپور سرائے چولستان کی طرف روانہ ہو جائیں گے. اب ہم انشاءاللہ تعالی یہ اتر کے تو ہم رنگ روڈ کی طرف جائیں گے. ہم بائیں طرف جو ہے نا, جو لوگوں نے ایئرپورٹ کی طرف جانا ہے نا, تو وہ اب ادھر بائیں مڑ جائیں گے ہم, اور رنگ روڈ سے ہوتے ہوئے ہم جائیں گے. تو جن لوگوں نے مینار پاکستان یا اس طرف جانا ہے وہ پھر سیدھے جائیں گے, اور سیدھے جا کے پھر وہ رنگ روڈ پہ چڑھیں گے. جبکہ ہم انشاءاللہ یہ دیکھیں اب لیفٹ کو مڑنے والے ہیں. یہ سامنے بورڈ بھی آ گئے ہیں, اور یہ اب ہم رنگ روڈ پہ انشاءاللہ تعالی یہ دیکھیں لاہور رنگ روڈ پہ چڑھ جائیں گے. یاد رہے کہ لاہور رنگ روڈ بھی جو ہے وہ بھی 3 لین بنایا گیا ہے, اور یہ فیوچر کی ریکوائرمنٹ کو, ٹریفک ریکوائرمنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ 3 لین بنایا گیا ہے. تو اب ہمارے دونوں طرف جو ہے نا وہ انڈسٹریل ایریا ہے, دائیں اور بائیں جو ہے نا بڑی بڑی اسٹیل فرنسز لگی ہوئی ہیں, جو کافی لاہور میں پولوشن پھیلانے کا سبب بنتی ہے. تو اب وقت آ گیا ہے کہ یہ رنگ روڈ کو یہ ان اسٹیل فرنسز سے پاک کیا جانا چاہیے, کیونکہ ان کو کسی اور جگہ جو ہے نا شفٹ کر دینا چاہیے, کیونکہ لاہور میں پہلے ہی بہت زیادہ پولوشن ہے. تو یہ جو اسٹیل فرنسز لگی ہوئی ہیں نا, یہ بہت زیادہ جو ہے نا یہ سموگ پیدا کرتی ہیں, پولوشن جو ہے وہ پیدا کرتی ہے. تو اب ہم انشاءاللہ یہ جا رہے ہیں ایئرپورٹ کی طرف سے. ایئرپورٹ سے آگے پر آئے گا فیز 8, وہاں سے ہوتے ہوئے ہم انشاءاللہ DHA فیز 6 میں پہنچیں گے. اور اب سورج بھی پورا ہمارا جو ہے نا ساتھ دے رہا ہے. یہ ہمارے ساتھ ہی جو ہے نا سورج بھی ایسے لگتا ہے جیسے ہمارے ساتھ ہی یہ بھی ٹریول کر رہا ہے. یہ دیکھیں گا, یہ دیکھیں گا. جن لوگوں نے واقعہ کی طرف جانا ہے وہ یہاں سے بائیں, یہ دیکھیں بائیں مڑ جائیں گے واقعہ بارڈر کی طرف, جلو پارک کی طرف. نہیں, اپنا جن لوگوں نے بھی جانا ہے نا واقعہ بارڈر کی طرف, ہاں واقعہ بارڈر کی, یہ اگلا انٹرچینج میرا خیال ہے جلو پارک جائے گا. تو یہ دیکھو اوپر جو ہے نا وہ جا رہی ہے, گرین ٹرین بھی ہے نظر آ رہی ہے. یہ فورٹرس اسٹیڈیم ہم انٹرچینج پہ پہنچ چکے ہیں. جنہوں نے فورٹرس اسٹیڈیم اور آگے مار روڈ کی طرف جانا ہے وہ یہاں سے بائیں طرف مڑ جاتے ہیں. اور ساتھ ہی آگے انشاءاللہ وہ ایئرپورٹ بھی آنے والا ہے. تو ہمارے دائیں ہاتھ جو ہے نا یہ دیکھیں بڑے بڑے فلیٹ بنائے ہیں عسکری والوں نے, یہ بڑے بڑے فلیٹ ہیں. تو آگے فلیٹوں سے آگے جب جائیں گے نا تو پھر ہمارے دائیں طرف جو ہے ایئرپورٹ آئے گا, اور بائیں طرف پھر انشاءاللہ جو ہے نا وہ DHA شروع ہو جائے گا. اب ہم بڑھ رہے ہیں ایئرپورٹ کی طرف. یہ دیکھیں نا یہ لکھا ہوا ہے کہ جنہوں نے ایئرپورٹ جانا ہے نا وہ سامنے بائیں طرف برج پہ چڑھ جائیں. یہ دیکھیں ایئرپورٹ پہ جانے والے یہاں پہ برج پہ چڑھ جائیں گے. ہم نے چونکہ DHA جانا ہے تو ہم اپنا سفر جو ہے نا وہ سیدھا رکھیں گے جاری. اور ابھی یہ فیز 8 پہ انٹرچینج آئے گا جہاں سے ہم جو ہے نا
मुड़ जाएंगे और फेज़ 8 से होते हुए हम अपना सफ़र इख्तिताम करेंगे फेज़ 6 में जाके। तो ये देखें, तो ये हमारे दाएं तरफ जो है एयरपोर्ट है, काफ़ी बड़ा और खुला इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और काफ़ी अब इसको वसी जो है ना किया जा रहा है ताकि ये आने वाले सालों की ज़रूरियात जो है ना वो पूरी कर सके। ये हमारे बाएं तरफ जो है ये अब DHA शुरू हो चुका है और ये देखें हमारे बाएं तरफ DHA है और हमारे दाएं तरफ जो है ना ये है जनाब एयरपोर्ट। ये जो आगे ब्रिज आ रहा है ना ये भी एयरपोर्ट की तरफ से जो लोग आते हैं और रिंग रोड पे जिन्होंने चढ़ना होता है ना एयरपोर्ट से रिंग रोड पे चढ़ने के लिए यही ब्रिज जो है ना वो इस्तेमाल किया जाता है। तो अब हम इंशाल्लाह ताला हमारी भी मंजिल अब आने वाली है, हम भी अब मुड़ने वाले हैं रिंग रोड से, हम भी उतरने वाले हैं। ये देखें ना ये सामने जो बोर्ड आ रहा है ना इसमें लिखा होगा कि फेज़ 8 की तरफ जाने वाले हैं वो एंड पे, या ये फेज़ 8 की तरफ जाने वाले बाएं मुड़ जाएंगे। तो अभी हम बाएं मुड़ेंगे इंशाल्लाह ताला। मेन बुलेवार्ड पे हम सफ़र कर रहे हैं जी। ये देखें ये अब हम उस रोड को पे जा रहे हैं। ये रोड सीधी बरकी रोड को जाके टच करती है। हमारे बाएं तरफ फेज़ 8 है और हमारे दाएं तरफ ये बड़े बड़े प्लाजे आपको नज़र आ रहे हैं, ये फेज़ 6 है। ये देखें ये बड़े प्लाजे हैं, कमर्शियल एरिया है, मेन बुलेवार्ड है और ये साथ साथ ना कोई नहरी छोटी नहर होती थी उसको हम पंजाबी में सुआ कहते हैं, कोई राजबा कहता है, तो वो अब बंद हो चुका है। पानी आता है लेकिन बहुत थोड़ा आता है। ये हमारी बाईं तरफ वो भी जा रहा है, साथ साथ जो है ना राजबा भी जा रहा है, ये बैंक साथ वाले गांव से। तो ये हमारे दाएं तरफ जो है ना ये फेज़ 6 है और हमारी मंजिल भी जो है ना वो फेज़ 6 ही है। यहाँ से अब हम इंशाल्लाह ताला ये देखें फेज़ 6 के अंदर जो है ना वो टर्न करने वाले हैं। ये देखो है, ये सामने हमें फेज़ 6 का काफ़ी सारी ओवरहेड रिजर्वायर बनाई गई हैं फेज़ 6 में। ये सामने हमें उनमें से एक रिजर्वायर भी जो है ना नज़र आ रहा है, बड़ी अच्छी। ये दरमियान में जो है ना ग्रीन बेल्ट भी ये पौधे लगाए गए हैं, ये अच्छे लग रहे हैं। सुबह सुबह ख़ास तौर पे जो है ना ये अच्छे लग रहे हैं। DHA फेज़ 6 के बीचों बीच ये बड़ा हाईवे बनाया गया है। ये देखें ये बड़ा हाईवे है और ये जाके बरकी रोड को जो है ना टच करता है। यानी पहले वाला जहाँ पे पहले आपको दिखाया था वो भी बरकी रोड की तरफ जा रहा है। ये बीचों बीच जो है ना फेज़ 6 के वो जो था वो फेज़ 6 और फेज़ 8 के दरमियान था मेन हाईवे, और ये फेज़ 6 के बीचों बीच जो है ना ये जा रहा है, ये भी बरकी रोड की तरफ ही जा रहा है। ये देखें ये सामने भी हमें प्लाजे नज़र आ रहे हैं। तो DHA के अंदर भी बड़े बड़े जो है ना वो हाईवेज बनाए गए हैं। चोलिस्तान जाते हुए हमारे सफ़र का पहला मरहला यानी गुजरांवाला से लाहौर तक मुकम्मल हो चुका है। अब हम इंशाल्लाह ताला बेटे के घर इंशाल्लाह ताला हम करेंगे नाश्ता और नाश्ते के बाद फिर हम इंशाल्लाह ताला जो है ना वो बहावलपुर चोलिस्तान की तरफ रवाना हो जाएंगे। अल्लाह ताला हम सब को जज़ाए खैर दे। अल्लाह हाफिज़।